السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24 پارے 2 رکوع کم ہو گئے اور ہمارا انشاءاللہ 11واں پارہ آج شروع ہوگا۔ 11ویں پارے کی سورت شروع والی یہ سورت برات کی ہے، سورت توبہ۔ سورت توبہ جو ہے یہ پورے ایک پارے کی سورت ہے۔ اس میں تقریباً آدھا پارہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک نے غزوہ تبوک سے متعلق فرمایا ہے۔ بیچ میں ضمنی طور پر کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی ہیں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات کے لوگ آئے۔ اب دیہات کے لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ جو مخلص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور ایک وہ جن کے اندر میں نفاق تھا، تو وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے ساتھ یہ عذر ہے ہمارے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اور بعض ایسے کہ جنہوں نے اجازت ہی نہیں لی، نہ نکلے نہ اجازت لی، بس ڈھیٹ بن کے گھروں میں بیٹھے رہے کہ کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی شدید الفاظ میں مذمت بیان فرمائی۔ اگلی آیات میں ایمان والوں میں بعض ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جانے کے لیے سواری نہیں، آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو سواری نہیں کہ میں تمہیں سواری دے دوں۔ تو وہ بہت غم زدہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں تَوَلَّوْا وَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، رونے لگے اور روتے ہوئے واپس گئے کہ اپنے پاس بھی گنجائش نہیں اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھی سواری نہیں ملی۔ اور یہ غزوہ انتہائی تنگی میں، مشکلات میں، اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عمومی طور پر چندے کی اپیل فرمائی تھی۔ یہ غزوہ تبوک تھا جس میں آپ نے سب لوگوں سے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے اللہ کے راستے میں دو۔ اور اسی غزوے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تشریف لائے تو وہ مال لے کے آئے، اور اسی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا اور 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا، ایک حصہ گھر میں چھوڑ کے آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پورا مال اللہ کے راستے میں لا کر کے دے دیا۔ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر جی یا رسول اللہ، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضور نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا گھر کیوں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ اور ادھر پہلے بتا چکے تھے حضرت عمر کہ میں گھر میں آدھا چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے کے آیا ہوں، اور ان کی آپس میں چلتی رہتی تھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ آج تو میں آگے نکل ہی جاؤں گا۔ تو آپ نے پوچھ لیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया और कुछ नहीं छोड़ा, जो मिला सब ले आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल में शर्मिंदा हुए और फरमाने लगे कि उमर, अबू बकर, मैं कभी भी तुम्हारा मुकाबला कर नहीं सकता। कोई मौका भी ऐसा नहीं आपने आने दिया जिंदगी में अब तक कि किसी मौके पे मैं आपसे आगे निकल सकूं। हर मौके में पहला नंबर आप ही का रहा, अव्वल नंबर पर आप ही रहे। इसी मौके पर हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है? तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खड़े हो गए। आपने इस तरफ रुख फरमाया, फरमाया कौन है? हजरत उस्मान फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, 100 ऊंट बमा साजो सामान, 100 ऊंट बमा साजो सामान। आप खुश हुए। फिर फरमाया आपने, फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 100 ऊंट बमा साजो सामान, करते करते 700 ऊंट बमा साजो सामान। और एक रिवायत में आता है कि 10,000 ऊंट, 10,000 ऊंट, 1/3 टोटल लश्कर जो था वो 30,000 का था। 30,000 जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया, तो 1/3 सवारी का इंतजाम, असरे का इंतजाम, साजो सामान का इंतजाम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिर्फ यही नहीं, फिर गए, फिर दिरमो दनानीर, सोने चांदी का तोड़ा भर के लाए, तोड़ा भर के लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बैठे थे तो वो मुश्किल से लाया और आप सल्लम की गोद में डाल दिया। ये आप सल्लम उन्हें यूं उछाल रहे थे और बहुत खुश। आपने फरमाया, उस्मान, आज के बाद जो मर्जी करो तुम जन्नती हो, आज के बाद जो मर्जी करो तुम जन्नती हो। और फरमाया कि आज के बाद कोई बदआमली तुम्हें नुकसान नहीं देगी, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के लिए लिख दिया। तो ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। और इसी मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने भी बड़ी कसीर तादाद में सवारियां पेश की। और इस मौके पर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तंगी का आलम यह था कि एक सवारी जो है वो 70 लोग एक सवारी पर आते थे, या कमो पेश इस 10 लोग बताया कि 10 लोग एक सवारी पर, यानी एक बैठता 9 चलते रहते, फिर दूसरा बैठता फिर वो चलते रहते। इस तरह से तंगी का आलम था और खाने के लिए ज़्यादा राह नहीं था, परेशानी थी। तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो सहाबी आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे, आपने फरमाया मैं कहां से करूं, पहले ही बड़ी मुश्किल से इतना इंतजाम हुआ है जो दे दिया गया। 30,000 का मजमा है, 30,000 सवारियां और 30,000 लोगों को असला फराहम करना, उनकी दीगर जरूरियात का इंतजाम करना, उनके जूते वाफर मिकदार में लेकर के जाना। उस वक्त आज का जमाना तो नहीं था कि कोई फैक्ट्री बनी बनाई है वहां से जूते, तो आम सादे से जूते होते थे। अब जिहाद करना है, इतना लंबा सफर है, तो सारी चीजों का इंतजाम। तो वो रोते हुए वापस जा रहे थे, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया। तो इसी असरा में अभी वो जा रहे थे, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पता चला, तो हजरत ने फरमाया कि या रसूलल्लाह 3 सवारियां और मेरी तरफ से, यानी पहले जो दे चुके वो दे चुके, फिर एक सहाबी और आए, फिर 3 सवारियां और आ गई, 6-7 सवारियां इस तरह से हो गई। तो ये उन लोगों को दे दी गई कि चलो भाई आपका काम चल गया। तो इस तरह से अगली आयत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो अल्लाह फरमाते हैं, यातज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तातज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। तकरीबन
80 से जायद मुनाफिकीन ऐसे थे, बहुत तो वो थे जिन्होंने पहले ही इजाजत ले ली, और ये वो थे जिन्होंने इजाजत ही नहीं ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो अल्लाह पाक ने पहले बयान कर दिया, या तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहि कुल्ला तातज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम। फरमाया वो आपके पास आकर माजरत करेंगे, उज़र करेंगे। आप कहें कि आप माजरत ना करें, उज़र ना करें, लन नुअमिन लकुम, हम तुम्हारी बात पर नहीं यकीन करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह तुम्हारे बारे में हमें पहले इत्तला दे चुके, अल्लाह ने हमें बतला दिया। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक चलोगे, तौबा ताइब हो जाओगे, सच्ची माफी मांग लोगे और अपनी इस्लाह कर लोगे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर याद रखो अल्लाह की गिरफ्त से बच करके कहां जाओगे। अगली आयत में वो जो इनसे भी अगले दर्जे में थे और मुनाफिकीन और देहात के रहने वाले, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर वो आपके पास आए, आपसे माजरत करें, फ़आरिज़ू अन्हुम, आप उनसे दरगुजर करें, ठीक है, उनकी माजरत कबूल कर लें। क्यों कबूल कर लें? इन्नहुम रिज्स, वो गंदे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बातें बना रहे हैं। अब अगर आप उनको लान तान करेंगे भी तो बेमकसद हो जाएगा। आप उनसे किनारा कशी करें, उनके साथ कोई ज्यादा मोहब्बत प्यार का नहीं, बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इन्नहुम रिज्स, गंदे हैं, व मअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है। और फरमाया अगर आप उनसे राजी हो भी जाएंगे, अल्लाह ताला उनसे राजी नहीं होंगे, अल्लाह ताला उनसे राजी नहीं होंगे अगर वो सच्चे सही मानों में तौबा ताइब नहीं होंगे और माफी तलाफी नहीं करेंगे। अगली आयत में अल्लाह पाक ने ईमान वालों की तारीफ की, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। फरमाया कि वो लोग जो मुखलिस हैं और फिर उनमें से भी वो लोग जो हिजरत से पहले ईमान ले आए, हिजरत से पहले, साबिकून अल अव्वलून। और बाद ने कहा कि इससे मुराद सुलह हुदैबिया से पहले तक जो ईमान ले आए, बाद ने कहा इससे मुराद जो फतह मक्का से पहले तक ईमान ले आए। फरमाया कि अल्लाह पाक ने सबके साथ एहसान का वादा फरमा लिया, अल्लाह सबकी मगफरत फरमा देंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला इन सब से राजी हो गए। उलमा ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबाए किराम सब जन्नती हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। और ताबीन, उनके बारे में भी उलमा ने लिखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए और जिनके आमाल ठीक थे और सब खैरुल कुरून का जमाना, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं मुनाफिकीन, जब ये वाकया पेश आया, उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ तो वो थे जो मुनाफिकीन थे खुले, 10 सहाबाए किराम वो थे जो पक्के थे, मुखलिस थे, और वो भी पीछे रह गए, वो भी जिहाद में शरीक नहीं हुए। 10 सहाबाए किराम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो इनमें से 7 वो थे जिन्होंने अपने आप को मस्जिद के सुतूनों से बांध लिया, मस्जिद के सुतूनों से बांध लिया। और 3 वो थे जिन्होंने अपने आप को सुतूनों से नहीं बांधा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप तशरीफ लाए तो मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा ये बंधे हुए हैं, पता चल गया
आपने फरमाया कि भाई इन्होंने अपनी सजा खुद तजवीज कर ली है, अपने आप को बांध दिए है, अब अल्लाह की कसम मैं भी उस वक्त तक नहीं खोलूंगा जब तक कि अल्लाह इनकी तौबा कबूल नहीं फरमाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं वआखरुना अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्या असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह ने इनकी तौबा भी कबूल फरमा ली। जब इनकी तौबा कबूल फरमा ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुलवा दिया। हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उन्होंने फरमाया जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से नहीं खोलेंगे मैं उस वक्त तक नहीं खुलूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खोला। फिर ये सहाबा कराम जो थे, इन्होंने अपना सारा माल हुजूर के सामने पेश कर दिया। हुजूर के सामने कि भाई हम इस माल की वजह से, ये माल ही फितना बना कि हम जिहाद में नहीं जा सके, और तो कोई वजह नहीं हुई, तो लिहाजा हम सारा माल अल्लाह के रास्ते में देते। आपने फरमाया मैं तुम्हारा माल कबूल नहीं करता, नहीं कबूल करता। अल्लाह ने आयतें उतार दी, फरमाया ना खुज़ मिन अमवालिहिम, इनसे माल ले लीजिए, सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु, इनसे माल ले लीजिए, इनके माल को पाक कर दीजिए। आपका ये करना इनके दिल के इत्मीनान के लिए होगा। सिर्फ यही नहीं, इनके लिए दुआ भी कीजिए। अल्लाहु अकबर। देखिए अल्लाह किस कदर शफीक हैं, मेहरबान हैं, रऊफ हैं, रहीम हैं। कितना बड़ा अमल है ग़ज़वा तबूक जो कि फर्ज ऐन था, अल्लाह के नबी ने नफीर आम कर दिया। उससे पीछे रह जाना और बगैर किसी ओज़र के रह जाना, सुस्ती और काहली की बुनियाद पर रह जाना, जब तौबा की अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा दी, सच्चे दिल से तौबा की। फिर माल कहा या रसूलल्लाह हम माल, ये माल हम सदका करते। आपने फरमाया मैं नहीं ले रहा। अल्लाह ने हुक्म दिया ना, इनसे ले माल, और साथ ही ये कहा कि पूरा ना लें। अल्लाह को पूरा माल ना लें। अगर ये पूरा माल इनसे ले लिए तो ये बेचारे करेंगे क्या, खाएंगे क्या, जाएंगे कहां? नहीं नहीं, पूरा माल ना लें, थोड़ा सा ले लें। तो कहने लगे या रसूलल्लाह पूरा माल। आपने फरमाया नहीं, पूरा नहीं। या रसूलल्लाह आधा माल। फरमाया नहीं, आधा नहीं, तिहाई माल यानी तीसरा हिस्सा। आपने फरमाया हाँ ठीक है, तीसरा हिस्सा ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिहाई माल ले लिया, उनके लिए दुआएं की और फरमाया कि आपकी दुआ की बरकत से इनको इत्मीनान भी होगा और अल्लाह ताला इनके कमी कोताहियों को माफ फरमाएंगे और सदका तो बिल्कुल धो देगा। अगली आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के लिए जाने से पहले तो कुछ मुनाफिकीन यहां मस्जिद कुबा के पास रहते थे। वो इनका राब्ता था, एक शख्स था अबू आमिर नामी। ये अबू आमिर जो था, ये वो शख्स था जो आपकी हिजरत से पहले ये नसरानी हो गया था। अभी आप मदीना नहीं आए थे तो ये नसरानी हो गया था, यानी ईसाइयों के दीन इसने कबूल कर लिया था और उनका राहिब बना हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ लाए यहां कुबा में, तो ये आपसे मिला और आपसे इसने बहस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहुत समझाया, लेकिन इस बदबख्त की तशफ़ी ना हुई, इत्मीनान ना हुआ और कहने लगा कि जो हम में झूठा हो वो अपने इलाके से, रिश्तेदारों से दूर मर जाए। तो ये उसने एक दुआ की। तो ये गज़वाए तबूक से पहले गज़वाए हुनैन तक
गज़वा हुनैन तक, यानी फतह मक्का, फिर उसके बाद गज़वा हुनैन, यहां तक ये मुस्तकिल हर मौके पर मुशरकों के साथ मिलकर, काफरों के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता रहा। और अल्लाह ताला का करम देखें कि इसका बेटा मुखलिस सहाबी हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला जो गसीलुल मलाइका हैं, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला ये इनके साहबजादे हैं, और ये वो सहाबी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान फरमाया कि जाना है, तो ये बीवी से सोहबत के बाद गुस्ल नहीं किया कि गज़वा ओहद में गुस्ल नहीं किया कि भाई देर ना हो जाए, कि मुसलमान वहां लड़ रहे हैं और पहुंच गए हैं, मैं पीछे रह गया। तो ये फौरन जो है इसी कैफियत में वहां चले गए। जब वहां गए तो शहीद हो गए। जब मैयतें देखी तो इनकी मैयत जो है मिली, लेकिन ऐसी कि अभी किसी ने गुस्ल दिए है और पानी टपक रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया। आपने इरशाद फरमाया कि इन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। और फिर पता चला कि जब ये जिहाद में आए थे तो नापाक थे ज़ाहिरी एतबार से, यानी गुस्ल नहीं करके आए थे, तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों के जरिया से इन्हें गुस्ल दिलवा दिया। तो इनका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका, वो शख्स जिसे फरिश्तों ने गुस्ल दिया। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला मुखलिस सहाबी थे। तो ये इसी अबू आमिर नामी के जो शख्स था इनके बेटे थे। तो ये गज़वा हुनैन तक तो मुसलमानों की मुखालफत करता रहा। जब गज़वा हुनैन हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हो गई, अब इसने देखा कि भाई मेरी दाल कहीं नहीं गलती। अब ये यहां से भागा और भाग के शाम चला गया ईसाइयों के पास, और वहां जाकर के नापाक हरकतें करता रहा इस्लाम के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ। वहां जाकर के ईसाइयों का जो बादशाह था उसको ये कोशिश करता कि उसको उकसाए इस बात पर कि मदीना पर हमला कर। तो उसने कहा कि मैं मदीना पर हमला तब करूंगा जब मदीना के अंदर से मुझे कुछ अफरादी कुव्वत मिले। मदीना के अंदर से मुझे कुछ अफरादी कुव्वत मिले कि अगर मैं बाहर से जाऊं तो वहां से कुछ लोग ऐसे हों जो मेरे हमायती हों। तो इसने कहा ठीक है। तो इसने यहां जो मुनाफिकीन थे उनसे राब्ता रखा और उनसे राब्ता करके कहा कि तुम ऐसा करो, कुबा में एक कोई कमरा बनाओ, उसको मस्जिद का नाम दो और उसमें तुम मीटिंगें किया करो और उसमें असला जमा करो, और जब एक मुनासिब वक्त आएगा तो मैं वहां से उसको ला करके हमला करेंगे, इधर से आप साथ देंगे। तो इस तरह से मुसलमानों का कला कमा करेंगे। तो तबूक में जाने से पहले ये चंद मुनाफिक हुजूर के पास आए मदीना में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद कुबा छोटी है और दूर भी है, मुसलमान हैं कुछ दूर दूर रहते हैं, उसमें बूढ़े हैं, कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, जिन्हें वहां जाने में मुश्किल होती है। तो हम चाहते हैं कि एक मस्जिद और बना लें, तो हम चाहते हैं कि उसका इफ्तिताह हम आपसे करवाएं, यानी पहली नमाज आप पढ़ा दें। आपने इरशाद फरमाया कि देखो अभी तो एक सफर दरपेश है और मेरी मसरूफियत भी है, जब वहां से वापस आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं उसमें नमाज पढ़ा दूंगा और फिर जो है उसका बाकायदा से इफ्तिताह हो जाएगा। तो ये बड़े मुतमईन हो गए और बड़े खुश हुए कि भाई हमारा मकसद जो है वो हल हो रहा है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना पहुंचे नहीं, पहुंचने से पहले ही रास्ते में मदीना के करीब अल्लाह ने आयतें उतार दी, वल्लदीन इत्तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल, कि वो लोग जो मस्जिद बना रहे हैं वो मस्जिद नहीं, वो तो ज़िरार है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए, मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए। जब ये आयतें उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया पूरी साजिश नाकाम हो गई। आपने चंद एक सहाबा इकराम को हुक्म फरमाया जाओ हमारे पहुंचने से पहले उसको गिरा दो और आग लगा दो। चुनांचे उसको गिरा दिया गया और आग लगा दी। इस तरह से मुनाफिकीन की साजिश नाकाम हुई, अल्लाह पाक ने उसका जिक्र फरमाया। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह पाक मस्जिद कुबा का जिक्र फरमा रहे हैं, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह। मस्जिद कुबा की बुनियाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उलमा ने लिखा कि इससे मस्जिद कुबा भी मुराद है और मस्जिद नबवी भी मुराद है, दोनों की बुनियाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकीज़गी को, तहारत को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यानी फरमाया कि एक तो मस्जिद की बुनियाद तकवे पर रखी गई है, अल्लाह की रजा पर रखी गई है और अल्लाह के नबी ने रखी है, नेक लोगों ने रखी है। फिर इसके साथ जो वहां के नमाजी हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू, वो लोग भी नेक साले हैं, मुत्तकी लोग हैं। तो उलमा ने लिखा ऐसी मस्जिद जिसमें नमाजी नेक हों, आमाल ज्यादा होते हों, उलमा ने लिखा ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजीलत और मस्जिदों की निस्बत ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। अल्लाह पाक ने सिर्फ मस्जिद की तारीफ नहीं फरमाई बल्कि मस्जिद के साथ नमाजियों की भी तारीफ फरमाई। सहाबा से आपने पूछा, फरमाया कि भी अल्लाह ने आपकी तारीफ की है, क्या अमल इख्तियार करती हैं? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम ढेला भी इस्तेमाल करते हैं, पहले ढेला और फिर पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी ताकि गंदगी का कोई शायबा ही ना रहे। उस वक्त पानी की किल्लत थी, वहां ज्यादातर उस वक्त अरब में ढेला ही इस्तेमाल होता था, पानी शाद व नादर मिलता था। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जैसा कैसा भी है, हमें मुशक्कत होती है, तकलीफ होती है, पानी हमें दूर से लाना पड़ता है, पानी कम होता है, लेकिन इसके बावजूद हम तहारत जब करते हैं तो ढेला और फिर पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने फरमाया यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आपकी तारीफ फरमाई है। अगली आयत में इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सन 11 नबवी में हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज के मौके पर मदीना से 6 लोग आए, 6 लोग। उन्होंने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 नबवी में हज के मौके पर मुख्तलिफ लोगों के पास तशरीफ ले गए और जाकर के आपने अपना पैगाम दिया, नबुव्वत की दावत दी, बताया कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। और इसी तरह आप अहले मदीना से जो लोग आए थे उनके पास भी गए। तो इन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाजत दें, हम जरा मशवरा कर लें। आपने फरमाया ठीक है। मशवरा करने के बाद अल्लाह ने इनकी काया पलटी, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये पहला मौका था, 6 लोग थे, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अगले साल 12 लोग आए, 6 ये और 6 और नए 12। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके साथ इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीना की बस्ती में लोगों में एक शौक पैदा हो रहा है, उन्हें कुरान पाक की तालीम के लिए, दीनी मसाइल के लिए कोई आदमी दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और एक और सहाबी को मुतय्यन फरमाया। फिर तीसरे साल 70 लोग आए, 70 में 70 मर्द थे और 2 औरतें थी। और ये तीसरे साल जब आए तो इन्होंने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, मुसलमान
यानी आप मुसलमान तो हो गए थे, बैत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत करके हमारे पास मदीना तशरीफ ले आए। तो आपने फरमाया ठीक है, रात को बात करते हैं, रात को। तो रात को आपने एक जगह इनसे मुतय्यन फरमा दी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, ये तीनों शख्सियात इस जगह जमा हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, आम इंसान नहीं है। अगर दम खम है, इनको संभाल सकते हो, इनकी पूरी हिफाजत कर सकते हो, फिर तो लेके जाओ, नहीं तो हाथ ना डालो। उन्होंने कहा कि बेफिक्र हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी जानों पे खेल कर हुजूर की हिफाजत करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि उन्होंने आपने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला और सहाबा इकराम हुजूर से फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह आप क्या चाहते हैं, अल्लाह के लिए क्या शर्त हमसे मनवाना चाहते हैं। आपने फरमाया कि कुछ शराइत हैं, फिर हिजरत करूंगा। वो कहने लगे या रसूलल्लाह अल्लाह के लिए क्या शर्त आप रखना चाहते हैं। आपने फरमाया अल्लाह के लिए शर्त यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे। फरमाया ठीक है या रसूलल्लाह, अगली बात आप अपने लिए क्या शर्त रखना चाहते हैं। आपने फरमाया मेरे लिए शर्त यह है कि जैसे तुम मदीना में अपने बाल बच्चे की साजो सामान की हिफाजत करते हो, ऐसे ही मेरी भी हिफाजत करोगे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ठीक है। और फिर कहने लगे या रसूलल्लाह अगर ये सारी शर्तें हम मान लेंगे तो मिलेगा क्या। फरमाया जन्नत, फरमाया जन्नत। उन्होंने फौरन हाथ बढ़ा दिया, या रसूलल्लाह हमें बैत कर लें, इस बात पर हम आपसे बैत कर रहे हैं। अल्लाह ने आयतें उतार दी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलूना वअदन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरआन। अल्लाह ने खरीद लिया ईमान वालों से उनकी जानों को और उनके मालों को जन्नत के इवज में। और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला और बाकी सहाबी फरमाने लगे बहुत ऊंचा सौदा हो गया, वाह वाह कैसी तिजारत कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत माल और दौलत, माल की वजह से और जान देकर अल्लाह ने हमें जन्नत दी। तो इस मुआहिदे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। इस चीज का जिक्र है अगली आयतों में, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके सके चचा हजरत अबू तालिब इंतकाल का वक्त करीब आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बहुत मोहब्बत। और हज़रत अबू तालिब जो हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चचा हैं, यानी आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला और ये अब्दे मनाफ यानी अबू तालिब, ये सके भाई थे। जब सके भाई थे तो बहुत मोहब्बत थी, और थे तो काफिर अबू तालिब, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताउन में और आपकी हिफाजत में जान लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह से एक दफा कलमा पढ़ ली। फरमाते एक दफा कलमा पढ़ लो, फिर अल्लाह मियां से बात करना मेरा काम, एक दफा कलमा पढ़ लो। आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए उनके पास, बिल्कुल आखिरी लम्हात आप तशरीफ ले गए। बदबख्ती अबू जहल और उतबा ये दोनों वहां बैठे हैं, वहां बैठे अबू तालिब के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भी इनका नज़ा का आलम है, यानी आखिरी लम्हात हैं। तो आपने फरमाया चचा एक दफा कलमा पढ़ लो, अल्लाह से आपकी सिफारिश करना मेरा काम। तो अब जैसे आपने ये फरमाया फौरन बदबख्त अबू जहल बोल पड़ा, कहा सरदार आदमी है, सरदार आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, अब जाते जाते ये कोई बुज़दिली दिखा के जाएगा कि अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ देगा। आपने फिर फरमाया, अबू तालिब ने कोई जवाब नहीं दिया, आपने फिर फरमाया कि चचा कलमा पढ़ लो, एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। तो फिर अबू जहल बोल पड़ा। फिर अबू तालिब ने कहा कि मैं अपने बाप
अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूं, और इंतकाल कर। जब इंतकाल हुआ आपको बहुत सदमा हुआ, आप उठ के आ गए और हज़रत अली से फरमाया जाओ उसे मिट्टी में दबाओ, कोई नमाज जनाजा नहीं है, कोई कफन दफन नहीं है, फरमाया जाओ उसको मिट्टी में दबाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा था। आपने इरशाद फरमाया मैं जब तक अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मना नहीं होगा मैं उसकी मग़फ़रत की दुआ करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। अल्लाह ने आयतें उतार दी, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी के लिए ये बात ज़ेब नहीं देती, भले करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब पता चल गया कि वो जहन्नमी है और कुफर पे मरा है, अब उसके लिए मग़फ़रत की दुआ नहीं है। बस फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ छोड़। अगली आयत में इसी गज़वा तबूक में 10 सहाबा किराम थे, जिनमें से 7 ने अपने आप को सतून से बांध लिया था और 3 थे हज़रत काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने इनमें हज़रत काब बिन मालिक जो थे वो यंग थे, जवान थे और माशाल्लाह बड़े दाना शायर थे। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 30,000 का मजमा था। अगर कोई छुपना चाहता तो इतने मजमे में कोई लिस्टें भी नहीं बनी थी। 30,000 भाई, जहां 500 लोग पता हो तो हमें पता ही नहीं चलता कौन आया कौन नहीं आया। तो वहां 30,000 का मजमा, कोई लिस्ट भी नहीं बनी, कोई हाजिरी भी नहीं। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक में पहुंच गए और कहते हैं कि मेरे साथ अजीब इत्तेफाक है कि मेरे पास पहले ऐसी कभी खुशहाली नहीं थी। इस मौके पर 2 सवारियां थी, एक भी नहीं 2 सवारियां। अच्छा, आप साफ साफ कह रहे थे कि भाई निकलना है, तैयार हो जाओ, सब ने जाना है, कोई बात पीछे नहीं रहे। और आपने फरमा दिया कि जुमेरात को निकलना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए जुमेरात का दिन पसंद करते थे। जुमेरात के दिन आपको पसंद था सफर करने के लिए, तो आपने फरमाया कि जुमेरात को जाना है, तैयारी पकड़ो। तो कहते हैं मेरे दिल में ये कि मैं तो जवान आदमी हूं, मुझे क्या तैयारी करनी है, मैं ये सवारी पर बैठा, ये जा वो जा, मेरे लिए क्या मुश्किल है। बस ये करते 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 हत्ता कि वो दिन आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और मैं ना निकल सका। तो मैंने कहा कि मैं अभी चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, अभी करते करते तो अब कई दिन हो गए। अब इधर ये कि मैं जब शहर निकलूं तो या तो मुनाफिकीन मुझे नजर आए, या बच्चे नजर आए, औरतें नजर आए, या जो माजूर थे, कोई नबीना है, कोई पांव से माजूर है, तो वो नजर आए। तो मुझे शर्मिंदगी सी हुई कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत गलत हो गया। बहुत मैं अपने अंदर में कुड़ने लगा। तो कहने लगे कि पूरे सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कोई जिक्र नहीं। जब वहां पहुंचे तो एक दिन आपने फरमाया कि भाई काब को क्या हो गया, काब इब्न मालिक क्यों नजर नहीं आ रहा, उसे क्या हो गया, वो क्यों नहीं आया। तो कहने लगे कि कुछ लोगों ने कहा या रसूलल्लाह आजकल वो कपड़े बड़े लचपच पहनते हैं, तो शायद वो कपड़ों में देखते रहते हैं, मकसद ये था कि उनको फरावानी और ये चीजें इस वजह से। तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे, वो भी बैठे थे, कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम मैंने काब इब्न मालिक में भलाई के अलावा कुछ नहीं देखा, यानी ऐसा नहीं है, वो तो बड़े नेक आदमी हैं। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, कुछ नहीं फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, 50 दिन लगे पूरे वाकये में, 50 दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए तो हमें इतला होने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और आपकी आदत मुबारक थी, आप सीधा मस्जिद में तशरीफ लाते थे। जब आप मस्जिद में तशरीफ लाए, आपने नफल पढ़े और नफल पढ़ के बैठ गए, हाल अहवाल लेने लगे। तो मुनाफिकीन की लंबी लाइन थी, 80 से ऊपर लोग थे और हम भी लाइन में लगे हुए थे। आप जब लाइन में लगे हुए थे कि आपके पास आना है, मुसाफा करना है, हाल अहवाल देना है, तो मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आए कि भाई झूठ मूठ ढड़ दूं। तो फिर मैंने कहा कि पहले एक गलती कर बैठा, ऊपर से ये एक गलती करूं। आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला की तरफ से पता चल जाएगा। तो कहते हैं कि मैं अभी कश्मकश में कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं।
फिर मैंने सोचा कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलना। तो खैर कहते हैं कि वो 80 से ऊपर मुनाफिकीन थे, तो वो आए और आकर के वो अपना उज़र बयान करते रहे। किसी ने कोई, आप कहते ठीक है ठीक है ठीक है, यूं यूं करके आप सबको फारिग करते रहे। कहने लगे जब मैं आया ना, आपसे मिला, तो आपने चेहरा फेर लिया। तो मैंने आगे बढ़ के कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम, ना तो मैं मुनाफिक हूं, ना मेरे ईमान में कोई शक है, तो आप मुझसे चेहरा ना फेरें। आपने फरमाया तो फिर गए क्यों नहीं, गए क्यों नहीं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज मेरे साथ ऐसे था जैसे दोस्त दोस्त से नाराज हो और आंखें फेर ले, ऐसा अंदाज था। तो आपने फरमाया फिर गए क्यों नहीं? तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम, अगर आपके अलावा कोई और शख्स होता, मुझे अल्लाह ने बात बनाने का ऐसा मलका दिया है कि मैं झूठ को सच करके पेश कर देता, लेकिन आप अल्लाह के नबी हैं। मैं समझता हूं कि अगर मैं आपके सामने झूठ बोलूंगा तो अल्लाह हकायक जाहिर कर देंगे। मैं, या रसूलल्लाह, मैं सच बोलना चाहता हूं, ना मेरे दिल में निफाक है और ना मेरे दिल में कोई और खोट है, मैं बिल्कुल मुखलिस हूं या रसूलल्लाह। कोई उज़र नहीं था, सिर्फ सुस्ती और काहिली, बस मैं ये समझता था। आपने फरमाया तुमने सवारियां नहीं खरीद ली थी? या रसूलल्लाह, मेरे पास एक एक नहीं, दो दो सवारियां थी। तो आपने फरमाया फिर? तो या रसूलल्लाह, मेरे दिल में बस ये था, मैं आज निकलूंगा, कल निकलूंगा, आज निकलूंगा, कल निकलूंगा। तो आपने फरमाया कि इसने कहा तो सच है। आपने फरमाया इसने कहा तो सच है। आपने फरमाया कि ठीक है ठीक है। अल्लाह ताला, और फरमाया कि सहाबा इकराम को हुक्म दे दिया, फरमाया इनसे बोलचाल बंद, इनसे कोई ना बात करे, कोई कलाम ना करे। और आपने भी कलाम करना छोड़ दिया। फरमाया जब तक अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई बोलचाल नहीं। तो फरमाते हैं कि मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि भाई अगर इस दौरान इंतकाल हो गया तो आप मेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे और मेरा शुमार कहां होगा? तो कहते मैं जहां भी जाता कोई मुझसे सलाम ही ना करता। एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया, तो मेरे चचाजाद भाई थे हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी, हमराज थे। तो उनका बाग था, मैं उनके बाग में गया, तो उनके साथ बेतकल्फी थी, दोस्त था। तो मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा कि कतादा तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि तुम जानते नहीं कि मैं सच्चा मुखलिस सहाबी हूं? और उन्होंने कहा कि अल्लाह जानता है बस। और कोई, मैं बात करता रहा, उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं और कोई सहाबी मुझसे बात नहीं कर रहा। तो मैं, कहते हैं कि मैं आता, आप ये नहीं कि जब बातचीत मान सब मेरे से बात नहीं कर रहे, आप भी बात नहीं कर रहे, लेकिन नमाजों में मैं आता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता और मैं बाकिया नमाज अदा करने के लिए मैं खड़ा होता आपके पास, आप मजलिस में बैठे होते। तो मैं जब नमाज पढ़ता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते और जब मैं आंखें फेर कर थोड़ा सा हुजूर की तरफ देखना चाहता कि हुजूर मेरी तरफ तवज्जो फरमाते हैं या नहीं, तो आप मेरी तरफ से नजर हटा लेते। तो इससे मुझे एक इत्मीनान होता कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज कम मेरी तरफ तवज्जो तो फरमाते हैं। तो फिर मैं आपकी तरफ देखने लगता तो आप फिर नजर फेर लेते, फिर मैं नमाज की तरफ मुतवज्जो होता तो फिर आप मेरी तरफ देखते। तो कहते हैं कि इसी तरह करते 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 40 दिन हो गए और अजीब हमारी कैफियत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, 3 सहाबी थे, हज़रत काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला। उन तीनों का उज़र इससे अलग था। एक उनमें से एक का उज़र उनका ये था कि उनका बाग था, तो कहने लगे कि भी हमने इससे पहले भी हुजूर के साथ खासे गज़वे किए हैं, अगर इसमें नहीं जाएंगे तो चलो कोई बात नहीं, ये उनके ज़हन में आ गया। और एक जो है उनकी फैमिली इधर उधर थी, तो एक इस मौके पर इकट्ठे हुए सारे, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब हम इकट्ठे हुए फिर शायद ऐसा मौका ना आए, तो कोई बात नहीं, इससे पहले हम हुजूर के साथ। तो ये 3 के पास बाकायदा कोई उज़र नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों से मुकाता फरमा दी। जब 40 दिन हुए तो आपने पैगाम भेजा कि अपनी बीवियों से अलग हो जाओ। कहा या रसूलल्लाह क्या तलाक देने? फरमाया नहीं, तलाक नहीं दें, उनको मेके भेज दें, मेके भेज।
کہا کہ اسی اسنا میں غسانی بادشاہ کا میرے پاس خط آیا، اس نے ان کا سفیر آیا، اس نے پوچھتے پوچھتے کہا کعب بن مالک کون ہے؟ تو میں بازار میں تھا، کسی نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے، اس نے مجھے خط دیا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ جیسے جوان جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ انہیں اس طرح سے نظر انداز کر دیا جائے، ہمارے ہاں تو آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور نیا جال آ گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو خط کو پکڑا، ٹکڑے کیا اور تنور میں ڈال دیا، تو کہتے ہیں کہ 50 دن گزر گئے، 50 دن، اور ہماری کیفیت یہ تھی کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی۔ کہتے 50ویں رات، یعنی اس رات 50 دن پورے ہو جانے تھے، رات کو 1/3 رات گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے، 1/3 رات گزر گئی تھی تو آپ پر آیتیں اتر گئیں، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم فظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ یہ آیتیں اتر، جب یہ آیتیں اتری تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یا رسول اللہ انہیں اطلاع نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی اطلاع کریں گے تو رش لگ جائے، ایک مجمع ہو جائے گا، سب کی نیند خراب ہوگی۔ صبح کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سنا دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کہنے لگے بس پھر کیا تھا، لوگ دوڑ پڑے ہماری طرف، کہنے سب سے آگے 2 آدمی تھے، ان میں ایک رفتار میں تیز تھا، جو دوسرا تھا وہ رفتار اس کی ہلکی تھی، وہ پہاڑ پہ چڑھا، جبل صنع پہ چڑھ کے انہوں نے دور سے آواز کی کعب مبارک، کہا وہ جو دوڑ کے آ رہا تھا اس کی آواز ان سے آگے، اور یہ جو جبل صنع پہ چڑھ کے جنہوں نے کہا تھا کعب مبارک، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن خطاب رضی اللہ، وہ دوڑ میں آگے نکلے تو یہ پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے اپنا اول نمبر قائم رکھا، پہاڑ پہ چڑھ کر کے مبارکباد دے دی۔ تو کہتے میں خوشی سے رو رہا تھا اور سجدے میں گر گیا، تو میں وہاں سے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ رہا تھا اور لوگ مجھے مل رہے تھے، گلے مل رہے تھے، کہہ رہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو ایک مجمع آپ کے پاس جمع تھا، تو حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ وہ جلدی سے اٹھے، مجھے گلے لگایا، کہا مبارک ہو۔ آپ کے پاس آیا، آپ مجھے ملے، آپ نے فرمایا مبارک ہو کعب، جس دن سے پیدا ہوئے ہو اس دن سے لے کر آج تک ایسا دن تمہارے اوپر نہیں آیا، تم ماں نے جب سے جانے ہے اس سے زیادہ اچھا دن تمہارے اوپر نہیں آئے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو میری توبہ قبول ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے آپ کے لیے آیتیں اتار دی۔ کہتے ہیں میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، میرے ذہن میں بس اتنا تھا کہ اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فرما دیں گے کہ ان کی توبہ قبول ہے۔ میں نے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک ہمارے بارے میں آیتیں اتار دیں گے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اللہ کے علاوہ ان کی کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ کے علاوہ ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس حضور کے سامنے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس میں اپنا پورا مال صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا، فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3، فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور میں نے عہد کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے یہ عزت سچ بولنے کی بدولت دی ہے، آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں پوری زندگی سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے پھر پوری زندگی مجھے سچ پر قائم رکھا اور کبھی جھوٹ نہیں زبان سے نکلا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی صحابہ اکرام کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس درود شریف انشاءاللہ 12:30 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ
रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह अपने करम से जो कहा सुना कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें कोताहियों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जैसे आपने महज अपने करम और फजल से इन सहाबाए किराम की तौबा को कबूल फरमाया, ऐ अल्लाह हम भी उन्हीं से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हीं के नक्शे पा पर चलने वाले हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। ऐ अल्लाह इन्हीं सहाबाए किराम का हम वास्ता देते हैं, हुजूर का वास्ता देते हैं, हम भी तौबा करते हैं, अपने करम से हमारी तौबा को भी कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़रत फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए हमें हिदायत पर कायम फरमा दीजिए, हर गुनाह से ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दीजिए, हम सब की मग़फ़रत फरमा दीजिए, हम सब के वालिदैन आइज़ा अक़रबा अहले खाना की मग़फ़रत फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आज की रात मुबारक रात है, इस रात को हमारे लिए लैलतुल क़द्र की रात बना दीजिए। ऐ अल्लाह ये शब जुमा भी है, ताक रात भी है, इस रात को हमारे लिए लैलतुल क़द्र की रात बना दीजिए। कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमा दीजिए, खात्मा ईमान पर फरमा दीजिए, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और उनके अहले खाना ऐ अल्लाह सब की कब्रों पे करोड़ रहमत नाज़िल फरमा दीजिए, सबको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सबको करवट करवट चैन सुकून आराम नसीब फरमा दीजिए। क़यामत के दिन हम सब का हशर सहाबा के साथ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह सहाबा की सफ़ों में हमें कल क़यामत के दिन उन्हीं के कदमों में हमें जगह नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।